اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، آپ جانتے ہیں کہ نیشنل نیوز میں جو اس وقت انٹرنیشنل سب سے بڑا اور اہم مدعا ہے، ایک مہینے سے پوری دنیا کے ذہنی اسکرین پر یہی مدعا چھایا ہوا ہے، اس لیے ہم نیشنل نیوز میں پہلی خبر غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر پہنچاتے ہیں۔ اس وقت پہلی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل غزہ پھر خاک و خون میں نہا گیا اور 109 کے قریب شہادتیں ہوئی ہے۔ جنگ بندی ختم ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی مصیبت سے 5 دنوں کی جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا اور اس کی توسیع کی کوششیں کی جا رہی تھی کہ جنگ بندی کو اور آگے بڑھایا جائے، لیکن اسرائیل اور امریکی یہودی اپنی شیطانی حرکت نہیں چھوڑ رہے تھے اور جنگ بندی کا اعلان ہونے کے باوجود بھی ناپاک حرکتیں کر رہے تھے اور معصوم بچوں پر گولیاں اور عورتوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ آخر جنگ بندی میں توسیع نہیں ہو سکی۔ مجاہدین نے کہا کہ ہم کھل کر مقابلے کے لیے تیار ہے، اور مجاہدین کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب امریکہ جیسا، اسرائیل جیسا بڑا سپر پاور آتنکوادی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے میں غزہ اور فلسطین کو ختم کر دیں گے، لیکن 1 مہینے میں بھی اس کو ختم نہیں کر پائے۔ مجاہدین نے کہا کہ غزہ کی زمین کو اسرائیل اور امریکہ کے لیے ہم قبرستان بنا دیں گے۔ خیر، جنگ بندی ختم ہوتی، اسرائیل کی پھر وحشیانہ بمباری جاری رہی۔ گزشتہ کل 109 شہادتیں، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ مزاحمتی تنظیموں نے بھی زبردست ڈیفنس کارروائی کی۔ وہاں پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ خان یونس، شیخ رضوان اور النصر جو علاقے ہیں، یہاں پر زبردست انداز میں مجاہدین اور اسرائیلی امریکی فوجیوں کے درمیان گھات لگا کر حملے بھی ہوئے ہیں۔ کئی اسرائیلی فوجی گاڑیاں اور ٹینک مجاہدین نے تباہ کیا ہے۔ درجنوں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ رفا گزرگاہ جو مصر سے جو بارڈر ہے، جہاں سے میڈیسنز، دوائیں، کھانے پینے کا سامان، کیونکہ پوری دنیا امریکہ اسرائیل پر یہ زور ڈال رہی تھی اور پریشر ڈال رہی تھی کہ یہ تو انسانیت اور مانوتا کے خلاف ہے کہ آپ معصوم بچوں پر گولیاں چلائے۔ ایک بھی جگہ ایکچوئل میں 99% اسرائیل یا امریکی فوجیوں نے مجاہدین سے لڑائی نہیں کی، حماس سے لڑائی نہیں کی۔ ان کی لڑائی معصوم بچوں پر ان کی بمباری، ہاسپٹل، اسکولز پر ان کی بمباری، رہائش گاہ یعنی رہنے والی بلڈنگوں پر ان کی بمباری ہوئی ہے، جس کو لے کر پوری دنیا اسرائیل اور امریکہ کے ناپاک آتنکوادی چہرے کو سمجھ چکی ہے، اور پوری دنیا یہی کوشش کر رہی تھی اور پریشر ڈال رہی تھی کہ جنگ بند ہو جائے، کیونکہ اب تک تقریباً 7000 کے قریب معصوم چھوٹی چھوٹی جانیں، 6000 کے قریب مہیلائیں، عورتیں اور 17000 کے قریب سول سٹیزنز یعنی عام شہری مارے گئے ہیں، جو جنگی قوانین کے خلاف ہے۔ اس لیے دنیا سمجھ چکی ہے کہ اصل آتنکوادی تو امریکہ ہے، جو اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے ملکوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔
नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 2024 करीब आ रहा है, विकास हुआ नहीं है, इसलिए विनाश की राजनीति की जा रही है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा कर ही बीजेपी इलेक्शन 2024 का जीतना चाहती है। और वो जैसे अंग्रेजों ने नापाक हरकतें की थी, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो, तो वही अंग्रेजों की नापाक औलाद जो अभी बची हुई है वो वही हरकतें कर रही है। देखिए, इस वक्त बीजेपी के एक बड़े नापाक लीडर, जिसे बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर और फायर ब्रांड लीडर कहा जाता है, मैं उसे कहता हूं कि बीजेपी का सबसे बड़ा जहरीला सांप, और केंद्र मंत्री है गिरिराज सिंह, इसने फिर जहर उगला, हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के लिए फिर माहौल बनाने की कोशिश की। और बीजेपी के इस घटिया किस्म के जहरीले लीडर ने इश्तियाल अंगेजी करते हुए यह कहा कि बिहार में नाजायज मस्जिदों और मदरसों का सैलाब आ गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि 2024 करीब आ रहा है, तो फिर वह बिहार हो कि महाराष्ट्र हो कि उत्तर प्रदेश हो, अब ऐसे ही बयानात दिए जाएंगे जिससे हिंदू मुसलमानों में लड़ाई झगड़े और नफरतें ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। क्योंकि जब नफरतें पैदा होती है तो फिर अंग्रेजों की औलादों को इसका पूरा पूरा फायदा पहुंचता है। आइए, इस वक्त कर्नाटक से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जहां बेंगलोर के 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं, तलबा, वालिदैन, पेरेंट्स, माँ बाप में भी खौफ और हिरास का माहौल बन गया है। नायब वजीर आला ने इसे सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया है। एक्चुअल में जिन जिन राज्यों में बीजेपी जलील और रुस्वा के लोगों ने, जनता ने लात मार के बीजेपी को बाहर निकाला है, तो वो राज्य ऐसे है कि जहां पर बीजेपी ऐसा ही माहौल बनाना चाहती है। जैसे भी आपने देखा होगा कि तेलंगाना बीजेपी के हाथ में नहीं था, इलेक्शन के मौके पर जितना जहर बोना था, जितना जहर उगलना था, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर वहां पहुंच गए और खूब जहर उगला। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिला 6 महीने में, दुबई जाने का वक्त मिल गया, अमेरिका जाने का वक्त मिल गया, 5 मुल्क जाने का वक्त मिल गया, लेकिन मणिपुर जल रहा है। हमारी 2 बहनों को वहां पर नंगा करके घुमाया गया। मेरी हिंदू बहनें थी, वो भी मेरी बहनें हैं, लेकिन मणिपुर वजीर आजम गए नहीं। पूरी दुनिया घूमने का वक्त मिल रहा है और प्रचार प्रसार में राजस्थान भी चले गए, मध्य प्रदेश भी चले गए, तेलंगाना भी चले गए, हर तरफ जा रहे हैं। तो अब जाहिर बात है कि जहां जहां इलेक्शन आने वाले हैं वहां पर भी माहौल खराब किया जाएगा। बल्कि मैं तो खुलकर ये कह रहा हूं कि 2024 से पहले 10-15 बड़े बड़े दंगे कराने का प्लान बना हुआ है। आइए, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से हमेशा अफसोसनाक की खबरें आती है, क्योंकि जब से मंदिरों के चलाने वाले मुल्क चलाने बैठ गए, स्टेट चलाने बैठ गए, तो जाहिर बात है हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो यूपी उत्तर प्रदेश से हमेशा इनकाउंटर और नफरतों की खबरें आती है। या योगी आदित्यनाथ को विकास नहीं करना है, किसी भी शहर का नाम बदलना है, किसी भी स्टेशन का नाम बदलना है, शिक्षा के मंदिरों को अगर आजम खान ने बनाया है तो शिक्षा के मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करनी है। खैर, खबर आ रही है उसी उत्तर प्रदेश से कि मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन में योगी हुकूमत नंबर 1। हम नहीं कह रहे हैं, खुद अपने मुंह से तारीफ योगी कर रहा है। यूपी असेंबली के सरमाई इजलास में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को निशाना बनाया। लेकिन आप और हम सब देख रहे हैं कि जब से योगी आए हैं, जितने जराइम, जितने क्राइम यूपी में हुए हैं, जितनी बेटियों का रेप और जितने दंगे और फसाद और गंदा माहौल यूपी में बना है, आपने, हमने, सबने देखा है। भले ही गोदी मीडिया दिखाए न दिखाए, लेकिन व्हाट्सएप की बरकतों से अब सारी चीजें पहुंच जाती है। आइए, बड़ी खबर आ रही है ट्रेन फायरिंग चेतन कुमार वाले मामले को लेकर। आप जानते हैं कि चेतन कुमार पुलिस की वर्दी में और सरकारी राइफल से आतंकवादी बन गया था, और सरकारी राइफल का इस्तेमाल नापाक तरीके से 3 बेकसूर मुसाफिरों को खत्म करने के लिए किया था। और जिनको मारा था, अब उसे इत्तेफाक कहे या सुए इत्तेफाक कहे या प्लान कहे, जिनको
मारा था वो तीनों के तीनों दाढ़ी टोपी वाले देख देख कर मारा था, यानी मुसलमानों को मारा था। उस वक्त चेतन कुमार को बचाने के लिए कुछ गोदी चैनलों ने भी कोशिश की और कुछ सियासी लीडरों ने भी कोशिश की कि नहीं, उसके दिमाग का संतुलन खराब हो गया था। तो उस वक्त भी मैंने भाषणों में भी कहा था और खबरों में भी कहा था कि चेतन कुमार ऐसे कैसे पागल हो गया था कि बराबर दाढ़ी और टोपी देखकर ही मार रहा था। खैर, चेतन कुमार को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। चेतन कुमार के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज और मुसाफिरों के वीडियो से शूट आउट की भी तस्दीक हो गई है कि उसने बाकायदा होश व हवास के साथ शूट आउट किया है और गोलियां चलाई है और देख देख कर चलाई है। आइए नाज़रीन, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि गुज़िश्ता कल आज़ाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी के पहले दिन का इज्तिमा बड़ा कामयाब रहा और ख़वातीन का जम्मे गफ़ीर एक सैलाब उमड़ आया। माशरे के हसास मसाइल, सेंसिटिव मसाइल पर ख़वातीन की माओ बहनों की रहबरी की गई, रहनुमाई की गई और खबरें हैं कि आज और कल यानी 2 दिन अब मर्दों का इज्तिमा होगा। मर्दों से भी शिरकत की अपील की गई है। सुन्नी दावत इस्लामी का 31वां सालाना सहरोजा सुन्नी इज्तिमा गुज़िश्ता कल आज़ाद मैदान में शुरू हुआ। जुमा की नमाज के फौरन बाद तिलावत कलाम पाक और हजरत मुईन मियाँ की पुरसोज दुआओं से शुरू हो गया। खवातीन की आमद का सिलसिला जुमा से पहले ही शुरू हो गया था। खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने वहां जोहर की नमाज अदा की। फिर जो ही प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, हजारों खवातीन और बेतहाशा इजाफा होता गया और शाम होते होते चारों तरफ खवातीन के सर ही सर नजर आने लगे। खैर, सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम जिम्मेदारों ने, बल्कि मैं भी अपने चैनल के जरिए से आपसे कहूंगा कि आज और कल मर्दों का इज्तिमा है। मर्दों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, इस वक्त रियासत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि भोपाल में बीजेपी ने एक ऐसी औरत के सर पर हाथ रखा कि जिस पर मालेगांव 2008 बम धमाके की वो अहम मुलजिम है। कई बेकसूरों को बम धमाकों में उड़ाने का उस पर इल्जाम है, लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी अगर किसी गुंडे के सर पे भी अगर हाथ रख दे तो वो पवित्र हो जाता है, गंगा से वो नहाकर आ जाता है और पार्लियामेंट में भी पहुंच जाता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने, जबकि अभी उस पर केस चल रहा है कई बेकसूरों को बम से उड़ाने का, मगर बीजेपी ढूंढती है। ऐसे जितने भी रहते हैं, बीजेपी को यकीन होता है कि इसको वोट ज्यादा मिलेंगे, बदनाम अगर होगे तो क्या नाम ना होगा, वोट ज्यादा मिलेंगे। तो बीजेपी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया और हमारी बदनसीबी कहे इसे, बुरी किस्मत हमें कहे हमारी इसे, कि ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट में जमा हो रहे हैं। खैर, कमलनाथ ने कांग्रेस के साबिक वजीर आला, एक्स सीएम मध्य प्रदेश और कांग्रेस की रियासती यूनिट के अध्यक्ष कमलनाथ ने सीधा निशाना साधते हुए मोदी पर निशाना लगाया और बीजेपी पर निशाना लगाया, खासतौर से मोदी जी पर, कि मोदी जी, मुल्क विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। जुमला करे, अल्लाह करे कि आप समझ जाएं, मुल्क विजन से चलता है, सोच और विचार प्रोग्राम से चलता है, टेलीविजन से नहीं। एक्चुअल में हमारे नरेंद्र जी मोदी ने तकरीबन बीजेपी ने तमाम चैनलों को खरीद लिया है और रात दिन झूठे प्रचार टीवी के जरिए से होते रहते हैं और अनभक्तों का, गोबर भक्तों का टोला जो देखता है वही सच समझता है। और हमारी भी वही आदत है, अगर हमको दिन भर एक चीज दिखाई जाए तो हम भी उसको सच समझने लगते हैं। तो टेलीविजन के जरिए से झूठी झूठी बातें पराई जाती है, पसारी जाती है, फैलाई जाती है। इसलिए कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी, मुल्क विजन से चलेगा, टेलीविजन से नहीं। आपने 7 साल, 8 साल, 9 साल टेलीविजन के जरिए से झूठी खबरों के, झूठी दिलासे के जरिए से मुल्क को चलाया। नतीजा ये निकला कि मुल्क का जीडीपी गिर गया, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई, मुल्क में आत्महत्या बढ़ गई, मुल्क का शेतकरी परेशान हो गया और मुल्क तबाही की तरफ चला गया।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। दिन मुल्क में नफरतों का माहौल तो बन चुका है और कई इलाकों में बाकायदा बजरंग दल के आतंकी कई इलाकों में गलत काम करते हुए पकड़े गए। यहां तक कि इन्होंने धर्म का भी नापाक इस्तेमाल किया और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए बिल्कुल नापाक ऐसा तरीका जिसको उनका धर्म भी इजाजत नहीं देता, मगर इन्होंने मंदिरों को भी लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल किया, गाय माता को भी लड़ाई झगड़ों के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे ढेर सारे वाकयात आपने हमने मुल्क में देखा है कि जिसमें आपने ये भी देखा होगा कि कभी नकली दाढ़ी टोपी का भी इस्तेमाल किया और मुल्क में नफरतें फैलाई, दंगे फसाद फैलाए। इस वक्त खबर आ रही है कर्नाटक के गंगावती से, जहां पर एक नाबीना, एक अंधा मुसलमान 70-80 साल का बूढ़ा, वो भी आंखों से अंधा, बजरंगियों ने उस पर हमला किया, उसकी दाढ़ी नोची, मारा पीटा और जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। यह वाकया 25 नवंबर का बताया जा रहा है। इस मामले में गंगावती के महबूब नगर के रहने वाले हुसैन साहब जो नाबीना है वो आ रहे थे। इस दौरान बजरंग दल के नौजवानों ने उन्हें घेर लिया, सुनसान जगह पर ले गए, जय श्री राम के नारे लगाने पर दबाव डाला और फिर उन्हें मारा पीटा, दाढ़ी को नोचा और जो कुछ उनके पास रकम थी, पैसे थे, वो छीन कर फरार हो गए। फरार होने से पहले शरपसंदों ने उनकी दाढ़ी को आग भी लगाई। जख्मों की ताब न लाकर ये बुजुर्ग अंधा बेहोश हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि ये राम का नारा लगाने पर मजबूर करने वाले खुद राम के भी शिक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी ये भगवान का नाम लेकर बाकायदा आतंकवाद फैला रहे हैं। दिन वादी कश्मीर श्रीनगर से शिक्षा का मंदिर यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, लेकिन अभी हाल ये हो गया कि कॉलेज स्कूलों में भी नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है। और जब बचपन से पढ़ने की जगह शिक्षा के मंदिर में बच्चा अगर नफरतें लेकर बड़ा होगा तो बताइए फिर ये मुल्क कैसे विकास करेगा और कैसे उन्नति करेगा। देखिए यह खबर आ रही है कि श्रीनगर की कश्मीर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एक हिंदू स्टूडेंट ने एक विवादित वीडियो शेयर किया, जिसके बाद कैंपस में नफरत फैल गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सख्त वार्निंग जारी की है। अब आप पहले जानते हैं कि श्रीनगर कश्मीर के हालात क्या है और वहां पर यूनिवर्सिटी में ऐसे वीडियो शेयर करना जिससे पढ़ने वाले हिंदू मुसलमान बच्चों में भी नफरतें पैदा हो, तो ये कितनी घटिया हरकत है। लेकिन आरएसएस के जो विंग्स है, स्टूडेंट्स और छात्र विंग्स है, जाहिर बात है कि उनके जहन भी वैसे बनते हैं जो शिक्षा के मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भी हिंदू मुसलमान का माहौल बढ़ाते हैं। पुलिस वालों ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नफरत को फैलाने में सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने जी, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पहले किस नीच हरकत के जरिए से महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराया गया। कैसे आपने देखा होगा कि डायलॉग मशहूर हो गया है, 50 खोके बाकी सब ओके। तो खो पर चलने वाली सरकार काफी बदनाम हुई। कैसे जमहूरियत, सेकुलरिज्म का कत्ल और मर्डर किया गया, आपने हमने सबने देखा। लेकिन ये सरकार फिर डगमगा रही है और इस वक्त खबर आ रही है कि पहले तो महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराई गई, फिर उसके बाद राष्ट्रवादी के भी 2 टुकड़े किए गए। अब ये 2 टुकड़े जो है महाराष्ट्र के माहौल को विकास की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं और अब इनकी आपस की लड़ाई महाराष्ट्र के विकास को रोक रही है। अभी फिलहाल खबर आ रही है, अजीत पवार ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि शरद पवार ने इस्तीफे का ड्रामा किया और हुकूमत में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। और उन्होंने ये भी कहा, अजीत पवार ने दावा करते हुए, कि बाप को राजी करने के लिए सुप्रिया सुले ने 7 दिन का वक्त मांगा था। खैर, कहते हैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम तो चाहेंगे कि इनके आपस की लड़ाई की वजह से हमारे महाराष्ट्र की उन्नति और विकास न रुके और हमारे महाराष्ट्र में अभी रिजर्वेशन को लेकर भी ओबीसीज को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, मराठा को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। हम प्रार्थना भी करें, दुआएं भी करें और कोशिश भी करें कि हम अपने महाराष्ट्र को आग में झुलसने नहीं देंगे।